Hello everyone, welcome you back in this physics video. Today we are going to learn it is error in the power of a quantity. So if we are having the errors in a physical quantity measurement, so if we are taking the power of this, then how we can find out the error of that power. So for this, let us start that I'm having the measured value of A. Okay, so how this measured value of A will be written? So it will be written as A plus minus delta A. Okay, so A is the true value and plus minus delta A, that it is the absolute error. So this will be the measured value. Now over here, I'm going to find out the power of this measured value. Let it be N. Okay, what I did over there, I have taken the power of this measured value. Okay, so this will be that measured value of z. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, मेजर्ड वैल्यू ऑफ जेड. जैसे एग्जांपल के लिए 2 का क्यू क्या बन गया मेरे पास, लेट इट बी एक्स. ठीक है, यानी कि ये क्या हो गया 8 बन गया. ठीक है, तो इसलिए हमारे पास मेजर्ड वैल्यू ऑफ जेड इज इक्वल टू दैट पावर ऑफ मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए. ठीक है, नाउ ओवर हियर how do we write this that of measured value of a? It is a plus minus delta a and its power is n. Okay, and how we will write this measured value of z? तो measured value of z भी कैसे लिखी जाती है, that is true value plus minus of this absolute error. Okay, so this you can do over here, plus minus this delta z. Okay, so this is the measured value of that z. Now which is further equal to, you will find over here, this is a plus minus delta a. Okay, so take out a common from inside the bracket. ठीक है, when you will take a common from inside the bracket, so you will find that ब्रैकेट से बाहर क्या आना है, पावर साथ में आनी है. ठीक है, तो a और उसकी पावर n, तो ये हमारे पास ब्रैकेट से कॉमन ले लिया. नाउ इनसाइड व्हाट विल लेफ्ट ओवर देयर, इट इज 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन में इसके डिवाइड में क्या आ जाएगा a एंड इट्स होल पावर इज n. ठीक है, सो दिस इज दैट व्हाट वी डिड ओवर हियर, वी हैव टेकन दिस पावर कॉमन. ठीक है, नाउ जस्ट लुक ओवर हियर, हमारे पास ये जो है एक फार्मूला बनता है 1 प्लस एक्स. मीन्स आप इस होल टर्म को क्या करोगे, अगर x पुट कर देते हो तो ये क्या बन गया हमारे पास 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स की पावर n का फार्मूला बन गया. ठीक है, नाउ ओवर हियर this is said to be as binomial expansion. Means whenever you are getting such a format, such a formula, ठीक है, of power, so at that time you will expand it with the help of this binomial theorem. ठीक है, तो binomial theorem what it says, how you have to expand such type of that formulas. So you will see over here, first term will be written as it is, and thereafter next it is the power. So the power could be negative, positive. Okay, it can be in a fraction as well. Okay, so over there that plus the power will come in the multiplication of this x, so it is nx. Thereafter plus, now the next n you will repeat it again. Thereafter you will subtract 1 from the n, and you will increase the 1 power of x square upon में 2 का factorial. 2 factorial mean to say that it is 2 into 1. It is the meaning of 2 factorial. ठीक है, तो ओवर हियर स्टूडेंट, अगर हमारे पास क्या हो जाता है, जो मैग्नीट्यूड ऑफ ये जो x का मैग्नीट्यूड है, इफ इट इज़ वेरी लेस देन दैट ऑफ 1, सो एट दैट टाइम वी आर गोइंग टू निगलेक्ट ऑल दिस हायर टर्म. ठीक है, तो इसमें जितने भी हायर टर्म्स हैं उनको निगलेक्ट कर दिया जाता है. सो दस वी आर गेटिंग ओवर देयर 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स. ठीक है, सो इम्पॉर्टेंट टू नोट, हमारे पास जो पूरी फिजिक्स है, तो पूरी फिजिक्स में ये जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है, इट विल बी यूज ओनली अप टू दिस 2 स्टेप. ठीक है, तो ये फर्स्ट 2 स्टेप के लिए ही यूज़ होती है, बाकी रेस्ट टर्म जो है उसमें नेग्लेक्ट कर दी जाती है. ठीक है, सो व्हेन यू विल यूज़ दिस वन, व्हेन यू आर गेटिंग सच अ सिचुएशन दैट इट इज़ 1 प्लस एक्स की पावर n. ठीक है, तो उस वक्त आप बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज़ करोगे. सो नाउ वी आर गेटिंग द सेम सिचुएशन ओवर हियर. ठीक है, सो हाउ विल यू एक्सपेंड इट, देन यू आर लुकिंग ओवर हियर, जो हमारे पास एक्सपेंशन है, दिस इज दैट 1 विल रिमेन एज इट इज़, देयर आफ्टर प्लस माइनस. सो जो पावर है इसमें,
पावर इसमें प्लस साइन के अंदर आती है, तो इसलिए हमारे पास n आगे आया एंड दिस विल मल्टीप्लाई विद द x। तो x यहाँ पर क्या है, इट इज़ डेल्टा a बाई a, ठीक है, दिस इज ओवर है। एंड व्हाट वी डिड फॉर द रेस्ट पावर, सो निगलेक्टिंग हायर पावर्स, ठीक है। क्यों हम हायर पावर्स को निगलेक्ट कर रहे हैं, एक तो ये हमारे पास की जो मैग्नीट्यूड है जो है एक्स का वो वेरी लेस देन 1 है, अगर होता है तो उस केस में हमारे पास जो हायर पावर्स है वो हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर इस चीज़ को भी आप समझ सकते हो कि हमारे पास जो डेल्टा ए है, ठीक है, तो ये क्या है, एक बहुत छोटा सा एरर। जब हम इसका स्क्वायर लेना शुरू करेंगे, जैसे एक्सपेंशन में क्या बोला था, एक्स का स्क्वायर फिर एक्स का क्यूब, ठीक है, तो इसलिए हमारे पास जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो ये और स्मॉलर टर्म बन जाएगी, इसलिए हमने क्या किया, जो हायर पावर है उनको निगलेक्ट कर दिया, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, ठीक है। नाउ ओवर हियर जो मेरे पास जेड है, जेड इज़ व्हाट, इट इज़ द एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। तो हमारे पास जो जेड है यहाँ पर, हेयर जेड इज इक्वल टू दैट एब्सोल्यूट, जो हमारे पास जो ट्रू वैल्यू है उस मेजरमेंट की, तो उसकी पावर n के बराबर होगा, ठीक है। तो z किसके बराबर, क्योंकि ये क्या है, इट इज़ ट्रू वैल्यू, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, ट्रू वैल्यू की पावर के बराबर होगा, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर जो z है उसको आप a की पावर n लिखते हो, सो इट इज़ a की पावर n प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू, और इधर यू जस्ट लेट इट एज, यहाँ से आप क्या करो, जेड कॉमन ले लो, सो जेड विल गो इन द डिनोमिनेटर, इट विल बी 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड विच इज़ इक्वल टू ए की पावर n अपॉन में जेड विल कम, है ना, व्हाट विल बी ओवर देयर। अगर आप जेड कॉमन लेते हो यहाँ से और फिर उसको राइट साइड ले जाते हो तो ये आएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू ए की पावर n अपॉन में जेड, तो जेड को आप लिख रहे हो ए की पावर n से ही, ठीक है। सो दिस इज 1 प्लस minus n delta a by a. So here the power will cancel to each other and we are getting this 1 will get subtracted with this 1. So thus finally we will get that it is delta z by z is equal to n delta a by a. Okay, so this is that error, maximum permissible error in case of this power method, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास ये क्या है, दिस इज द फ्रैक्शनल एरर, इट इज सेड टू बी फ्रैक्शनल एरर इन द nth पावर ऑफ अ क्वांटिटी, ठीक है। और ये किसके बराबर होता है, इज n टाइम्स द फ्रैक्शनल एरर इन दैट क्वांटिटी, तो ये फ्रैक्शनल एरर इन दैट क्वांटिटी के बराबर होता है, ठीक है। सो दिस इज ओवर देयर दैट दिस इज व्हाट, सो वी आर गेटिंग फ्रैक्शनल एरर, तो एब्सोल्यूट एरर अपॉन में इट्स ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू दैट n टाइम्स द एब्सोल्यूट एरर अपॉन में ट्रू वैल्यू ऑफ दैट मेजर्ड वैल्यू, ठीक है, तो ये उसके बराबर होगा। नाउ ओवर हियर that how much is the error in the product of two quantities and if we are taking the division, so how much is that maximum permissible error in it, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट की बात करने वाले हैं, सो लेट अस टू टेक ओवर हियर मेजर्ड वैल्यू, तो मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए इट इज़ गिवन बाय ए प्लस माइनस डेल्टा ए, while that measured value of b is given as b plus minus delta b, ठीक है। तो हमारे पास हमने क्या करना है, यहाँ पे प्रोडक्ट निकालना है, तो प्रोडक्ट निकालना है तो प्रोडक्ट से हमारे पास क्या बनेगी, दिस विल बी द मेजर्ड वैल्यू ऑफ जेड, ठीक है। तो हमारे पास जो मेजर्ड वैल्यू ऑफ जेड है दिस कैन बी आल्सो इन द फॉर्म, ये भी क्या होगा, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस ऑफ डेल्टा जेड होगा, ठीक है। नाउ ओवर हियर जो हमारे पास ट्रू वैल्यू है, ठीक है, ट्रू वैल्यू कैसे निकलेगी, यानी कि जेड कैसे आएगा, सो इट विल बी द मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि यहाँ पर हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब डिवीजन की बात करेंगे तो ये ए बाई बी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट दैट इट इज़ इन मल्टीप्लिकेशन, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, ए बी,
इट इज़ द ट्रू वैल्यू। ठीक है, नाउ ओवर हेयर मुझे फाइंड आउट करना है कि इसमें जो हमारे पास एब्सोल्यूट जो एरर है, ठीक है, तो वो कैसे निकाला जाएगा। सो फॉर दिस लेट अस टू स्टार्ट। जो हमारे पास जेड एम है दैट इट इज़ जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड एंड विच इज़ इक्वल टू ए एम, इट इज़ ए प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा बी। Okay, so multiply over here within the bracket, then we will get that it is AB plus minus that of A delta B plus minus this B delta A plus minus this is delta A delta B. Okay, this is over there and this is equal to Z plus minus delta Z. Okay, now see over here that and this is smaller quantity, this is smaller quantity. Okay, so both of these are the smaller quantity and their multiply will also be small. Okay, so thus we will have that delta A dot delta B is small quantity, smaller quantity, so neglecting it. ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया, इसको निगलेक्ट कर दिया, मतलब कि इसको इक्वल टू जीरो ले लिया। ठीक है, सो देयर फोर वट विल लेफ्ट ओवर हेयर नाउ, देयर विल बी डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए, and this z will go in the denominator other side when we are taking it common from here. So this will be ab upon में z plus minus a delta b upon में z plus minus b delta a upon में z. Okay, this will be there. तो एब्सोल्यूट हमने ऑलरेडी बोला था यहाँ पे कि जो ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू जो है वो ट्रू वैल्यू ऑफ ए और ट्रू वैल्यू ऑफ बी को मल्टीप्लाई करने से आएगी। ठीक है, सो दस हेयर आई एम गोइंग टू मेक इट एज लेफ्ट साइड डोंट पुट द वैल्यू ऑफ जेड, right side you can put it over there, so it will be ab by ab, it will cancel, plus minus this is a delta b upon my ab, so a will cancel, plus minus b delta a by ab, so this is going to cancel, and we are getting it is 1 plus minus delta z by z is equal to 1 plus minus delta b by b plus minus delta a by a. So 1 and 1 is going to cancel, so that implies how much is that fractional error. So fractional error is there that of delta z by z is equal to delta b by b plus delta a by a. Okay, this is the error in that मल्टीप्लिकेशन एंड एज वेल एज फॉर द डिवीजन। ठीक है, डिवीजन के लिए भी हमारे पास क्या होगा, जो एरर है दैट विल बी द सेम वे ऑफ कैलकुलेशन। ठीक है, डिवीजन के लिए भी हमारे पास बस यहाँ पर ड्यूरिंग द डिवीजन व्हाट विल बी, जो जेड होगा, जो ट्रू वैल्यू होगी वो ए अपॉन में बी होगा, और यहाँ पर भी आप क्या करोगे, जो मेजर्ड वैल्यू करोगे जेड की, तो वो मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए अपॉन में मेजर्ड वैल्यू ऑफ बी लिखा जाएगा। ठीक है, सो देयर आफ्टर यू कैन सॉल्व दिस वन, व्हाट यू विल गेट आंसर सेम। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के टाइम में जो हमारे पास एरर है दिस कैन बी कैलकुलेटेड बाय फ्रैक्शनल, टेक द फ्रैक्शनल एरर of that a, fractional error of b, and then add them together, so this will be the fractional error in that final measured physical quantity. Let us to solve one of the question. So there this resistance is given by the formula r is equal to v by I, and here this v is equal to that potential difference, it is having its true value 100 plus minus error in that it is 5 volt, and that current measurement it is 10 plus minus 0.2 ampere. Okay, this is over here, so we have to find out that find percentage error in R। ठीक है, तो रेजिस्टेंस में परसेंटेज एरर कितना है। ठीक है, एरर वी हैव टू फाइंड इट आउट, सो जस्ट टू चेक ओवर देयर व्हाट इज गिवन, इट इज़ वी वाई आई। ठीक है, यानी कि डिवीजन का मेथड है, तो डिवीजन मेथड और प्रोडक्ट मेथड में जो हमारे पास एरर था वो सेम फार्मूला होता था एरर को फाइंड आउट करने का। ठीक है, एंड वी ऑलरेडी नोन ओवर हेयर क्या था वो फार्मूला,
चाहे हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो दो नंबर्स को या फिर दो नंबर को हम डिवाइड कर रहे हो, तो उस वक्त जो एरर है इसमें कैसे निकालेंगे, जो फ्रैक्शनल एरर इन जेड इज इक्वल टू फ्रैक्शनल एरर इन दिस ए प्लस फ्रैक्शनल एरर इन बी। ठीक है, ये हमारे पास होगा। तो इसलिए यहाँ पर रेजिस्टेंस के अंदर कितना एरर है, सो यू नीड टू फाइंड आउट, बिकॉज ये डिवीजन मेथड है, तो इसलिए हमारे पास इसमें फ्रैक्शनल एरर यू नीड टू फाइंड आउट। इट इज डेल्टा आर बाई आर, फ्रैक्शनल एरर विच इज इक्वल टू दैट ऑफ डेल्टा बी बाई बी प्लस दैट डेल्टा आई बाई आई। दिस इज व्हाट फ्रैक्शनल एरर। नाउ दे सेड दैट इट इज इन परसेंटेज, तो परसेंटेज में आपने इसको फाइंड आउट करना है। तो परसेंटेज के लिए बस आपने इसको क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। हर एक जो आपने फ्रैक्शनल एरर लिखा है उसको 100 से मल्टीप्लाई किया, सो दिस विल बिकम परसेंटेज एरर। ओके, नाउ ओवर हियर दिस इज व्हाट, दिस इज द परसेंटेज एरर इन आर। नाउ इट इज व्हाट, इट इज परसेंटेज एरर इन आर। ठीक है, रेजिस्टेंस में परसेंटेज एरर कितना है। So this you will find over here that how much is the absolute error of this potential difference? It is 5. Okay, upon में that how much is the true value? It is 100. So into 100 plus that of current value. So its fractional error it is zero point 0.2. This absolute error upon में I. So I is how much? It is 10. So into 100. Okay, so this will cancel over here, this will cancel over here, so it will become 5% plus that of 0.2 into 10, it is 2, so it is going to be 2%. Okay, so thus we are getting over here it is what, 7%. so this is the percentage error. ठीक है, तो परसेंटेज एरर के लिए आपने क्या किया, पहले तो आपने फ्रैक्शनल एरर लिखा, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो सिंपल सा हमारे पास क्या आ गया, fractional error we calculated in this case. Thank you for watching the video.